of achieving aims of education through curricular and co-curricular activities, role of social institutions in education, role of social institutions in education under the supervision of Rubul Kalita, etc. Okay. मेरे कलिता में के बड़ा भी करोगे तो I don't mind. Yes, sir. Okay. Carry on. Hurry Good up. afternoon, sir. सर Yes, Sunny. फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए इन लोग का? Yeah, sure. It is up to why you are asking me. यस सर. सर एक्चुअली नूतन को ज्यादा ही एक्साइटेड आई थी तो पहले प्रेजेंट कर दिया. नहीं ठीक किया उन्होंने करके रखे. So it will keep us away from wasting time. Yes, sir. Okay, so good afternoon, everybody. I hope all of you are fine. So let's start today's presentation. But before going to that, remember that you have plenty of time. So because you are, I think, 4 members, so try to combine your presentation within 20 minutes. And also, students, you can ask any type of question and give your feedback at the end of the presentation. So I would like to invite Nutan to introduce your topic and your group members. So you can start now. Hello everyone. Very good afternoon to all of you present here. On behalf of my team, I welcome to all of you to our group presentation. It's a group presentation consists of 4 members. So first of all, I would like to thank you for giving this opportunity to introduce myself and my team members. So Thank you, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, my friends. I am Nutan Kumar Misra from Central University of Haryana, bearing a roll number 200116 and from section B. I heartily welcome to our presentations. this is Satyavati Sahu, roll number 200124, section B. This is Namrita Singh, having the roll number 200115 from section B. Now turns to Tilochan. Good afternoon, everyone. This is Tilochan Naik, bearing roll number 200132, section B. So, friends, today we will focus on the topic ways of achieving aims of education through curricular and co-curricular activities, and role of social institution in education. So we have divided our topic in 4 subtopic. So these are our content. First is introduction, and the second is aims of education, curriculum, curricular activities, co-curricular activities, and last role of social institutions in education, and last conclusion. So our first subtopic will start by Namrata Singh. Please, Namrata, switch on your mic and present. Thank you, Nutan. First, we will see what is education means according to Nelson Mandela. According to him, education is the most powerful weapon which can use to change the world. Now we will see what are the aims of education. Please, next slide. Before talking about aims of education, we will focus what does mean aims. Aims is a predetermined that provides a direction. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल दूं, अपने हम कोई भी अपने डिग्री लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम कोई रैंडमली नहीं स्टार्ट करते हैं या फिर फ्लो में नहीं करते हैं. वी डिसाइड द पर्पस, लाइक इफ वी वांट टू गो टू मार्केट वी आस्क व्हाई वी शुड गो टू मार्केट, व्हाट इज द नीड टू गो. That means in simplified way we can say aims provide a direction to go ahead. If we talk about the aims of education, what does mean here? The aims of education are meant to provide the general direction to the educational process. That means हमें education की help से क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये aim of education define करता है. Please next slide. If we try to understand definition of aims of education in the words of great scholars, great thinkers,
First, we will focus what the Mahatma Gandhi told. According to him, by education, I mean an all-around drawing out of the best in the child and man, body, mind, and spirit. What does meaning of the drawing out here? Drawing out here is referring that extracting the inner potential of a person in desirable behavior to utilize the potential in the national building. And what does mean of mind, spirit, and the body reflect? Body means physical development, mind means cognitive development, and the spirit means spiritual development. That means we can say, according to Gandhiji, aims of education should be holistic development of the child and man, regard of physical, mental, and spiritual. If we talk about the what John Locke said, in the what of John Locke, he said, aim of education should be to produce a sound mind and sound body. Means aim of education would be to discipline all faculties such as memory, imagination, perception, thinking, etc. Please, next slide. If we talk about aims of education, aim of education not a fuse, it is a dynamic and vast. But here we will focus on some aims of education. First, harmonious development of personality. अगर हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझे, let us consider any simple to simplest example to understand these things related to our daily life. मान लीजिए मैं किसी old person से बात कर रही हूँ and I am using the term evening. And I understood that during the conversation, that person is not able to understand the word evening, and that's when definitely I will change I will mold myself because I understood that person is not able to understand. He is using the Sandhya as a place of evening. That means here education is playing a vital role. क्योंकि हम लोग अपने क्लासरूम में स्कूलिंग में पढ़ा है कि इवनिंग के बहुत सारी सिनोनिम्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में लाइक Sandhya, Sam. This means here is education is playing the role to understand the different word, and it is also taught by our teachers, faculty members, and the family members how to adapt ourselves according to different situation. And that means we can say that education is playing to understand the different word and different ideas, giving the how to maintain the harmonious conversation with that person by molding our personality. Second was the vocational efficiency. Please back to slide. Vocational efficiency. There is no doubt quality education helps to attain the skills, knowledge, like a carpenter attain the skills of carpentry, scientists attain the gains of body of knowledge, and many more jobs is provided. Character development. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन थिंकर्स ये बिलीव करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन में, और सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट मोरल एजुकेशन की तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हमें जो एजुकेशन होता है वो कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है जब हम मोरल एजुकेशन को प्राप्त करते हैं. अगर हम बात करें इंटरकल्चर अंडरस्टैंडिंग, we know that education helps to know different norms, social heritage, and these things accumulate a vast of information, human experience, and this all things is transmitted from one generation to other generation through education. At last, creation of good citizen. What does mean a good citizen? Good citizen means responsible citizen. And if we say conclude the aims of education, we know aims of education not a few, it is a totally dynamic. But if we define the ultimate aim of education is a modification of desirable behavior of a person. And now, please next slide. जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बहुत सारे एम्स ऑफ एजुकेशन को डिफाइन किए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये राइज होता है ना कि एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव कैसे कर सकते हैं. वी हैव वन ऑफ द कंट्रोल्ड वे एज अ टूल. वी हैव अ करिकुलम. वी कैन डिजाइन द करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल एम्स, एंड दिस एजुकेशनल एम्स enable us to determine the curriculum, relevant teaching strategies, techniques, and these things is help the learning condition and experience. And in the upcoming few minutes, we will listen how we can achieve the aim of education with the help of the curriculum. This will be described by Nutan and the Satyabati. Now hand over to Nutan. Thank you all of you.
So thank you Namrata. So today next हम डिस्कस करेंगे कि ways of achieving aims of education through curricular activities. So in this first we will discuss the curriculum and its meaning, then curricular activities, then about the features and the different types of curricular activities. So first हम देखेंगे कि what is the meaning of curriculum. So curriculum is a structured body of knowledge. It includes all the activities that take place inside and outside the classroom within the school campus. And the word curriculum was derived from the Latin word career, which means a race course. So it is a both as a process and a product. So how? तो करिकुलम जो है एक लैटिन भाषा करियर से आया है, so उसका मतलब होता है रास्ता या पाथ होता है. तो जैसे कि हम अगर कोई जा रहे हैं किसी जगह पर, तो जो हमने तय कर लिए ना, ये होगा प्रोडक्ट. तो और जो हम अभी जा रहे हैं वो क्या होगा ना, प्रोसेस होता है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो करिकुलम एक गाइडलाइंस या एक रास्ता प्रोवाइड करता है हमको, किसके लिए करता है ना, स्टूडेंट के लिए या जो प्योर एजुकेशन सिस्टम के लिए करता है, कि जो भी एजुकेशन का एम है या ऑब्जेक्टिव से करिकुलम की अकॉर्डिंग ही वो पूरी होती है. तो हम एक डेफिनेशन देखेंगे करिकुलम का. अकॉर्डिंग टू बी रडियंट एंड एच हेनरी, curriculum in its broadest sense includes the complete school environment involving all the courses, activities, reading, and association furnished to the pupil in the school. So, curriculum includes all the physical, social, and academic environments of a school or college. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि curriculum it is a tool in the hands of a teacher that is used to attain the objectives of education. तो curriculum एक मीडियम या टूल होता है जो कि एजुकेशन का एम या ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करता है. किसके थ्रू करता है ना, टीचर के थ्रू करता है. टीचर ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें. सो इट इज ए टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड रिसीव्स एट ए स्कूल दैट हेल्प्स हिम टू रियलाइज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड द टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, एंड इट प्रोवाइड्स the means for all round development of a child. And one more thing, the old concept of curriculum kya tha na, it is the merely a syllabus, as a syllabus, but the new concept of curriculum is very broad. It is the totality of student experiences that occur in the educational process. This means that curriculum consists of the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go in the schools. So kya kya activities ho sakta hai? It can be in a classroom, libraries, workshops, and playground, and the numerous contexts between the teachers and the pupil. So next, the curriculum can be identified by through curricular and co-curricular activities in educational system. So first हम देखेंगे कि what is the meaning of activities. Activity is the act which is performed by students in his own environment. So क्या क्या हो सकता है among those activities? Story telling, dance, drama, seminar, conference, workshop, etc. So बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होता है. So these activities have theoretical and practical knowledge and provide scopes to apply that knowledge into different situation. So जो भी हम एक्टिविटी क्लासरूम सिचुएशन में कंडक्ट करते हैं कि आउटसाइड में करते हैं, तो ये हमको डिफरेंट सिचुएशन में हेल्प करता है कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं. So somewhere these activities to be divided into two types. One is curricular activities and other is the co-curricular activities. And one more thing, how the combination of these two activities are helpful to in the holistic and meaningful development of a child. So first we will telling about the curricular activities. So curricular activities are the activities that are the part of curriculum. तो जो फर्स्ट जो करिकुलर एक्टिविटीज होता है एक करिकुलम का ही एक पार्ट होता है. सो इट इज द एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट इनसाइड द क्लासरूम, इन द लैबोरेटरी और इन द वर्कशॉप्स एंड हैव रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज आर कॉल्ड करिकुलर एक्टिविटीज. सो जितना भी एक्टिविटीज होता है क्लासरूम के अंदर या लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्वेश्चन आंसर सेक्शन या लैबोरेटरी में जो भी हम वर्क करते हैं, ऐसे कि कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे ना, करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर ये जाएगा. और ये these activities are a part of the overall instructional programs. और ये एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स होता है. कैसे कि जैसे कि हम जो सारे चीज जो है लाइक क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे एकेडमिक एक्टिविटीज होना चाहिए, तो कौन कौन सा कंटेंट या सब्जेक्ट हम कब पढ़ना चाहिए, तो सारे चीज जो है वो पहले से ही डिसाइड होता है. तो ये एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स के अंदर ही जाएगा करिकुलर एक्टिविटीज. एंड नाउ देयर इज a full involvement of the teaching staffs in these activities. तो इसमें क्या होता है ना, फुल जो टीचिंग स्टाफ होते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज. करिकुलर एक्टिविटीज इज फॉर्मल इन नेचर.
तो यस, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अभी बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जो बीएड का कोर्स होता है क्या होता है ना, 2 इयर्स के लिए होता है, या उसका जो सिलेबस होता है ये पहले से डिसाइड होता है, उसमें कब क्या पढ़ाना चाहिए, हम कब टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये पहले से डिसाइड होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ही आता है। तो ये सभी जो होता है करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर ही जाएगा, और ये फॉर्मल इन नेचर होता है। नेक्स्ट, करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स क्लासरूम टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। एंड तो करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारे वर्क होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स के क्लासरूम टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन वर्क, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर, जर्नल, ये सब जाके हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो ये भी सभी जो उसका फीचर्स होता है करिकुलर एक्टिविटीज का। और जैसे कि लैबोरेटरी में जाकर के किसी भी टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट करना, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना एंड क्लासरूम असाइनमेंट करना, तो ये सभी करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आता है। एंड in curricular mode of education, students formally read about the different festivals, ceremonies and celebration. एंड हम क्या करते हैं ना करिकुलर एक्टिविटीज में, स्टूडेंट्स सिर्फ फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन को सिर्फ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ही पढ़ते हैं, उसके बारे में बुक में पढ़ते हैं। बट को करिकुलर एक्टिविटी में ऐसे नहीं होता है, बट ये जो फीचर्स होता है करिकुलर एक्टिविटीज में हम सिर्फ उसको पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट, नाउ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। The first types of curricular activities in the classroom activities, and next is the activities in the library, activities in the workshops, seminar and conference, and the last types of activities is activity in the laboratory. तो हम सभी को briefly describe करेंगे। First, classroom activities. Then what we include in the classroom activities? So classroom activities are related to the work in different subjects such as classroom experiment, discussion, question answer session, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शनल गेम, जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शनल गेम के माध्यम से जो टीचर है उसको समझ रहा है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग होता है उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, और मेकिंग डिफरेंट चार्ट्स एंड मॉडल्स। सो दिस एक्टिविटीज आर कम्स अंडर द क्लासरूम एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इन एक्टिविटीज इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में किस कैसे एक्टिविटीज होता है, करिकुलर एक्टिविटीज कैसे होता है, एंड इट डील्स विद रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, टेकिंग नोट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स, मेकिंग ए स्क्रैप बुक, मेकिंग फाइल्स फ्रॉम ए न्यूज़पेपर कटिंग। सो ये सब जो होता है इस कम्स अंडर द एक्टिविटीज इन द लाइब्रेरी, जो कि हम क्या करते हैं ना लाइब्रेरी में जाकर के जो भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगे उसको कट करके, न्यूज़पेपर कट करके हम क्या करते हैं उसको जो हमारा नोटिस बोर्ड होता है उसमें रखते कि अपने पास रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये भी शो क्या होता है ना लाइब्रेरी एक्टिविटी में अंदर जाता है, और हम उसको भी करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर लेते हैं। देन द थर्ड टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज इज द लैबोरेटरी। तो जैसे कि एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट इन द साइंस लैब, हिस्टोरी रूम, जियोग्राफी रूम, लैंग्वेज लैब्स, और लैबोरेटरी इन ह्यूमैनिटीज, जैसे कि हम साइकोलॉजी, एजुकेशन, होम साइंस, तो जो भी हम प्रैक्टिकल चीज करते हैं, एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, कैसे हम उसको करेंगे, तो ये हम लैबोरेटरी के अंदर ही करते हैं, ये भी एक करिकुलर एक्टिविटीज को में जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द फोर्थ नॉट अ लिस्ट, द करिकुलर एक्टिविटीज रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन, डिस्कशन परफॉर्म्ड बाय डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि हम बहुत सारे हम जो चीफ गेस्ट आते हैं, हमको क्या करते हैं ना कॉन्फ्रेंस या जो वर्कशॉप होता है, हम उसको जो डेलीगेट जो हमको होता है, सेमिनार होता है, हम उसको सुनते हैं, तो ये भी क्या होता है ना एक करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाई द नीड्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। सो करिकुलर एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स आर रिस्पांसिबल फॉर सैटिस्फाइंग द मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड करिकुलर एक्टिविटीज एनेबल स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव इन द क्लासरूम। तो जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होता है, जैसे कि हम बोले कि जो पहले डिसाइड होता है कि क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट से एक्टिव रहता है कि वो मोटिवेट रहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है कि वो क्या करना, वो क्लासरूम में सभी इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप्स द स्टडी हैबिट अमंग द स्टूडेंट। जैसे कि मैं बोला कि लाइब्रेरी में वर्कशॉप्स, जो कॉन्फ्रेंस होता है, तो बच्चे के अंदर एक स्टडी हैबिट्स भी डेवलप होता है। एंड organization of curricular activities provide both the theoretical and practical knowledge to students in that taught subject matters. Laboratory में जैसे जाकर के practical knowledge, theoretical knowledge वो gain करते हैं। So thus organization of curricular activities give a sound theoretical knowledge and understanding about useful responsibility and democratic citizenship to the students in the classroom situation. So after starting the various types of curricular activities, it is essential to highlight that the fact of the academic or instructional work in any subject will be meaningless if it will not be accompanied by one or all the above mentioned activities. So next जो है topic है co-curricular activities. So this will be discussed by Satyavati. Please Satyavati, switch on your mic and present. Thank you, Nitin.
So, Nutan has already discussed about the curricular activities. So, let's start with co-curricular activities. First of all, what is co-curricular activities? So, co-curricular activities are the components of non-academic curriculum that helps to develop the all-around development of the child. जैसे कि इन एर्लियर टाइम हम ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है 3 ईयर सिस्टम पे बेस्ड है, रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक। हम ये जानते हैं कि बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ अरिथमेटिक वर्क करेंगे तो उनका नॉलेज डेवलपमेंट होगा, उनका एजुकेशन फुलफिल होगा। बट नाउ द कंसेप्ट हैज चेंज्ड। नाउ वी आर फोकस अबाउट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, जहाँ पे हम उसका एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, सारे चीजों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अकॉर्डिंग टू भटिया, उन्होंने ये कहा था जो co-curricular activities may be defined as the activities undertaken to strengthen the classroom learning as well as other activities both inside and outside the classroom to develop the personality of the child। इसका मीनिंग ये होता है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज होता है वो इसलिए परफॉर्म होता है कि करिकुलर एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ हम जब को करिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक लिटरेसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इमोशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। लिटरेसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा हम डिबेट कंपटीशन करते हैं, स्कूल मैगजीन पढ़ते हैं बच्चों ने, लाइब्रेरी वर्क करते हैं, एसे राइटिंग कंपटीशन करते हैं, ये सारे लिटरेसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर आएगा। मोरल डेवलपमेंट जैसे कि हम स्कूल में ग्रेट पर्सन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे मोरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। और कल्चरल डेवलपमेंट जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर का स्टूडेंट्स है तो हम जब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कल्चरल बेस पे, कोई भी फैंसी ड्रेस करते हैं या फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर हम सबको डिफरेंट कल्चर के बारे में जानने को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसे ही उनका कल्चरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Then we discuss about the values developed by the co-curricular activities। कौन सी वैल्यूज डेवलप होता है co-curricular activities के थ्रू। फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल वैल्यूज। These values have great educational potential। All classroom knowledge is theoretical, but हमें उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना हो तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देना है जिसके थ्रू वो co-curricular एक्टिविटीज को करेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे। और जब हम कोई भी डिबेट कंपटीशन करते हैं या ऐसे राइटिंग कंपटीशन करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो और साथ साथ उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलपमेंट हो और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उन स्किल को वो डेवलप करेंगे। देन व्हाट इज नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वैल्यूज। इट इज इसका नेम से हमें पता चल जाता है कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स होता है स्टूडेंट्स को, उनको फुलफिल करना है। दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग पर्सनल बिहेवियर एंड प्रोवाइड फॉर आइडियाज फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज सिविक वैल्यू। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिविक क्वालिटीज होना चाहिए जैसे कि इनिशिएटिव, लीडरशिप एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टॉलरेंस। these qualities are not teach in classroom environment। so हमें इस क्वालिटीज को सिखाने के लिए हमें प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट चाहिए। जब हम बच्चों को प्लेग्राउंड में छोड़ देते हैं तो उनके अंदर ये सारे क्वालिटीज डेवलप हो जाता है बाय वर्किंग ऑन ग्रुप एक्टिविटीज एक्सेट्रा। देन सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज तो मेन कोऑपरेशन में होता है, तो सोशल वैल्यू रिकॉग्नाइज एज द important demands of the citizenship। it is very difficult to learn in theoretical basis like हम जब स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सब हम स्कूल सब्जेक्ट लेकर पढ़ाते हैं, तो सोशल वैल्यूज हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते। तो इनके लिए हमें उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसके अंदर वो गुड मैनर्स सीखेंगे, उनके अंदर सेंस ऑफ कोऑपरेशन डेवलप होगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखेंगे।
Next, recreational values. By providing and organizing such opportunities, we can provide students these opportunity. By this, they can spend their time to in this. मतलब students जो होते हैं वो उनका जो टाइम होता है वो टीवी या स्टोरीज फेसबुक सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, बट उनको जब हमें इस अपॉर्चुनिटी देंगे तो उस टाइम को वो पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, उस टाइम को वो अपने डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। देन फिजिकल डेवलपमेंट वैल्यूज, यहाँ पे जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एबिलिटी एथलेटिक वर्क होते हैं, तो ये सारे इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में, थ्रू व्हिच दे आर साइकोमोटर डोमेन्स डेवलप करेगा, उनका फिजिकल बॉडी फिट रहेगा। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना जरूरी है, वैसे ही फिजिकल डेवलपमेंट होना उतना ही जरूरी है। अगर कोई लड़का साल भर पाठ पढ़ेगा और उनका बॉडी स्ट्रक्चर फिजिकल फिट नहीं होगा, उनको बीमार हो जाएगा, क्या वो एग्जाम अटेंड कर पाएगा? तो क्या फायदा होगा उनका जो साल भर का जो हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जितना ही कॉग्निटिव लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना फिजिकल लेवल में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। देन कल्चरल वैल्यूज, जब हम स्कूल में ड्रामेटिक एक्टिविटीज करते हैं, फोक डांस करते हैं, फोक म्यूजिक कंपटीशन करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं डिफरेंट कल्चर का जो और रिलीजियस का जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे ही उनमें से स्टूडेंट्स का जो कल्चरल वैल्यू डेवलपमेंट होता है, वो क्या उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक दूसरे का कल्चर को समझने के लिए और उनके अंदर नॉलेज गेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। So here are some examples of co-curricular activities. वैसे ही बहुत सारे co-curricular activities है, बट मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट co-curricular activities को मेंशन किया है, जैसे कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, रिसाइटेशन, ड्राइंग, डिबेट, स्पोर्ट्स। Especially in this pandemic situation, we can arrange some technical co-curricular activities like blog writing, web designing, and digital art, etc. Next slide. Here are some graphical representation of co-curricular activities: swimming, dancing, rangoli, cooking, harmony and bicycling. ये सारे भी co-curricular activities होते हैं। Next slide. So last not the least, what is the importance of co-curricular activity for better physical and mental health? So co-curricular activities helps us for better physical mental health activities by provide games, sports and some psychomotor works, then create opportunity। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे वकील बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो जिसके अंदर जो एक्टिविटी है, जो स्किल है, वो उन स्किल को लेकर सक्सेस भी ले आएंगे। जैसे कि कोई एक अच्छे डांसर है, कोई एक अच्छे सिंगर है, हमें उनको उस अपॉर्चुनिटी स्कूल लेवल से देना है, उनका क्वालिटीज को नर्चर करना है, ताकि वो फ्यूचर में उस लाइन पे जाकर भी सक्सेस पाएंगे। Then last, sense of responsibility and confidence. जब हम कोई ग्रुप वर्क करते हैं और सोशल वर्क करते हैं, क्या होता है ना, बच्चों सीखते हैं कैसे ग्रुप में काम करा जाता है, कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है, उनके अंदर एक सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एंड उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। ये सारे का इवेंट में जब बच्चे पार्टिसिपेट करेगा तो उनका सोशल स्किल तो डेवलप होगा ही होगा। Next. So these are some curricular and co-curricular activities which has already discussed. So in curricular and co-curricular activities को परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कहाँ पे हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे। So these platforms are social institutions which will details में describe करेंगे my colleagues Trilochan. So I hand over to Trilochan. Thank you, Satyavati. तो टुडे विल डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन। तो पहले हम जानेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन
set of social norms organized around the preservation of a basic societal value. Or we can say that it is an important human organization that helps a society to survive. A social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. अगर मैं कहूँ ये यहाँ क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल है या पर्सन है जो एक साथ रह के या ब्लेंडेड होके एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे उनकी अपनी अपनी एक हॉबी होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, उनकी राइट होती है, उनकी प्रिविलेज होती है, लेवलिटी होती है, उनकी गोल होती है। तो इन सारे अपनी क्वालिटी और प्रोपोज को लेके एक कम्युनिटी गठन करती है जिसे हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, तो सोशल इंस्टीट्यूशन को हमने यहाँ पे तीन भागों में, मेनली तीन भागों में बांटा गया हुआ है, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। तो हमें जानेंगे फैमिली क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। A group of people who are related to one another such as mother, father, children, etc. Or we can say that the member of family are united by the ties of marriage, blood or adoption who interact with each other in their respective social position. तो फैमिली का मतलब क्या है? जो हमारा फैमिली मेंबर एक पर्सन है जो अपने साथ रिश्ता क्या, रिलेशन क्या बनाते हैं, उसे हम फैमिली कहते हैं। जैसे कि हम ब्लड रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो हमें पता चलता है मदर, फादर, चिल्ड्रन आ जाएंगे। एडॉप्शन मतलब कोई बाहर का है रह गया, उनको हम क्या बोलेंगे। मैरिज करके आएंगे तो मतलब जो वाइफ रिलेशन में आ जाएगा, तो इसी को हम फैमिली कहते हैं। तो फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कॉज सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड किसे कहते हैं? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हम स्कूल मतलब होम को मानते हैं, घर को, जहाँ पे फैमिली रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा पहले क्या करता है कि अपने पेरेंट्स से सीखता है, जो भी सीखता है पेरेंट्स से सीखता है। जैसे जैसे कि हमें पता है कि पेरेंट मतलब बच्चे क्या सीखता है, पहले पहले वो बोलना सीखता है, फिर खाना खाना वो सीखेगा, मतलब किसे क्या कहते हैं, जो एक रियलिटी को सीखेगा। अगर हम कहें तो फैमिली इज द family is the fundamental unit of any community or society who's serving a link between individual and society. At home we teach reality to children in a profounding, personal, informal and unstructured way. तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब बच्चे सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, हैबिट मतलब अच्छा बुरा कोई भी सीख सकता है कि अच्छा बुरा हैबिट घर से सीखता था। फैमिली प्रोवाइड फैसिलिटी और फॉर स्टडिंग, मतलब हमें फैमिली प्रोवाइड करता है कि सेपरेट क्वार्टर मिल जाए, हमें पढ़ाई के लिए स्कोप मिल जाए, मनी मिल जाए, मतलब वो फैमिली हमारे एजुकेशन के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आ जाएगा स्कूल, a place where people of different age gain education which provides socialization, development of personality, social control, social integration, route for social mobility, etc. Education is the process of socialization which bring informal at home and then formally in the education institution. Education institution help develop knowledge, skill, attitude, and understanding of the people and to make them contingent member of the society. तो हमें क्या कहता है कि ये स्कूल हमें प्रोवाइड करता है, तो वो तो मतलब बुक नॉलेज देगा, साथ में कि नहीं उनका नॉलेज डेवलप, स्किल डेवलप करेगा। डिफरेंट हम पीपल के साथ इंटरेक्ट कर सके, सीख सकते हैं, डिफरेंट कल्चर सीख सकते हैं, डिफरेंट नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ में क्या कहता है स्कूल, हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो स्कूल में एक्टिविटी करे जाते हैं उनसे हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट फेस्टिवल्स करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जान सकते हैं, डिफरेंट कल्चर को सीख सकते हैं। नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हम वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा सोशल एंड कल्चरल सेंटर, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर कैरी कर सकते हैं अपने साथ, डिफरेंट कॉलेज की। उसके बाद आ जाएगा पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर डे में मतलब हमारे खूबी रहती है, वो कमियां रहती हैं जो हमारे पेरेंट टीचर के थ्रू, स्कूल के थ्रू हम हमारे में सुधार ला सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन क्लासेस होते हैं जहाँ पे हम नए नए चीजें सीख सकते हैं। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे हम डिफरेंट नॉलेज की ज्ञान मिल सकती है। जैसे कि हम फिर साइंस एग्जीबिशन करते हैं, जो साइंस फेयर रखा जाता है डिफरेंट, उसमें से हमें न्यू न्यू आइडिया मिल सकती है थ्रू स्कूल। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमें मिलते हैं कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड दिस कनेक्शन आर crucial to comprehending human behavior and their various organizations that make
of society. Social relation can be understood in terms of societal role and the position, and one person plays several roles in everyday life, and they are mainly focused on the comprehending society in the comprehension of a social interaction, role and status, norms and value. तो सोसाइटी में क्या होता है कि अपनी अपनी एक डिफरेंट भूमिका रहती है, मतलब जो मतलब माँ हो गया, माँ की भूमिका वो खुद निभाई, मतलब उसका जगह कोई ले नहीं सकता, जैसे पापा, फादर, भैया, भाभी जो भी हैं, उनकी अपनी अपनी एक रोल होता है एवरीडे लाइफ में, जो अपने अपने रोल को प्ले करते हैं, उसके साथ साथ अपनी इंडिविजुअल लाइफ को भी प्ले करते हैं, जो हमें बहुत सारे चीजों को सीखने या सिखाने में मदद करती है. एज ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, इट्स फॉलो टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज सोशल activity and second one is interaction. As a result, society can be defined as a big group of individuals who interact with one another and share a common culture, territories and the way of life. तो हमें कि यहाँ से पता चलता है कि सोसाइटी हमारा लाइफ को कैसे बेहतर बनाता है, हम एक सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, उनकी ऑर्डर मतलब वैल्यूज को हम कैसे हैंड ओवर करते हैं हमारा, और अपनी जो रोल है सोसाइटी में हम उसे कैसे प्ले कर सकते हैं, उस हिसाब से हम एक अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं. उसके साथ हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन जो पीढ़ी आ रही है उनको हम कैसे सोशलाइज कर सकते हैं. उसके साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो उनकी एक सोशल ऑर्डर है, उनकी वैल्यू है, कुछ रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए हम एक साथ रह सकते हैं. इसे हम सोसाइटी कहते हैं, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है. नेक्स्ट. थैंक यू. Now I will hand over this conclusion part to Satyavati. So all the points are explained by all the members. So now the time to conclude. So here we conclude that the curricular activities have the same importance as the co-curricular activities in achieving the aims of education, and education as social institutions are an important element in the structure of human society. So they provide a structure for behavior in a particular part of social life. So we cannot ignore one part like co-curricular or curricular activities. By ignoring one, we cannot assume the holistic development of the child. So thank you all of you for listening patiently. These are our references. Thank you. Now it's your turn. If any query, then you can ask questions.